We start with the first chapter, that is circular motion. In our physics we have different types of motion. Okay, I have classified them as one dimensional motion, two dimensional motion and 3D motion. बात सुना है? ऐसे तो क्लासिफिकेशन दूसरा भी है, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन. दैट कैटेगरी आई एम नॉट गोइंग इन. One dimensional motion was motion in a straight line or free fall under gravity. Okay. Two dimensional motion comes in two categories. One is projectile motion, or we can say circular motion. The 2D motion. 2D motion मतलब x और y कोऑर्डिनेट साथ में चेंज होंगे. x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4. So we are going to study a part of two-dimensional motion today. That is which motion? Circular motion. Three-dimensional motion and motion in space, where x coordinate, y coordinate and z coordinate, the three of them are changing at that instant. Circular motion के काइनेमैटिक्स आज हम पढ़ेंगे. दो टाइप के डिवीजन होते हैं, वन इज काइनेमैटिक्स एंड अदर इज डायनेमिक्स. काइनेमैटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मोशन. सो वी आर गोइंग टू डू स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. डायनेमिक्स मतलब उसका कारण, द कॉज. सर्कुलर मोशन किस कारण होता है. जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा. सबसे पहले हमने काइनेमैटिक्स पढ़े. कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें बेटा? एस होता है, यू होता है, वी होता है, ए होता है, टी होता है. ये सब चीज हमने पढ़ी है. और हमने फिर फॉर्मूलाज बनाए. एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये क्या था? ये इसको कहते हैं काइनेमैटिक्स. डायनेमिक्स क्या होगा? डायनेमिक्स उसका कॉज होगा. What is the cause of motion? Force. याद है 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था फोर्स नाम का. Actually it means dynamics of motion. अच्छा, फोर्स या तो टॉर्क के रूप में होगा या तो फोर्स के रूप में होगा. टॉर्क होगा तो वो रोटेट कराएगा, फोर्स होगा तो लीनियर. और उसमें अलग अलग कैटेगरीज आती है. इंपल्स की कैटेगरी आ गई. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? वैसे ही today we are going to study kinematics of circular motion. I'm starting with the definition. Circular motion is defined as motion of particle along the circumference of circle. Motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. Means if I take a circle and if I take one particle, is that time zero? What do you mean by time zero? The time when you start observing him. ये तो घूम ही रहा था. जब मैंने उस पर देखा, उसको देखा at time zero, he was here. He was at A. He was at A. Now he is moving anti-clockwise and coming to B. And can I say this is time T? कुछ समय बाद वो B पर आ गया. Motion of the particle along the circumference of the circle is called as circular motion. So this is one particle is moving along the circumference of the circle, and that motion is termed as which motion beta? Circular motion. It is a complex motion. इधर ध्यान देना है. अच्छा, सबसे पहली बात, क्या ये जो चीज है उसका नाम बॉडी है कि पार्टिकल है? What is the name I have given you over here? Particle.
Can I say motion of the body along the circumference of the circle is called as circular motion? No. Body और particle में फर्क है. Physics में body कब लेते हैं और particle कब लेते हैं? I'll tell you. Suppose I am here, I walk 2 steps. 1, 2. Can I say the dimensions which I have covered are comparable to the size of my body? So I will be treated in physics as a body. But if I walk from here till Bombay Central Station, can I say the size of my body is negligible comparatively to the path? I will be treated as a point. Earth कितना बड़ा होता है Earth? But when it moves around the sun, can I say the dimensions of the circumference are very large comparatively to the size of the earth? So earth is treated as a particle. Motion of the moon around the earth. Moon कितना छोटा होता है? बड़ा होता है. But normally over here the path, the circumference is so bigger that the size of the moon is very small comparatively to the circumference. इसके लिए वो चीजों को हम क्या पकड़ते हैं? Point या particle. बात समझ में आ गई? So motion of particle along the circumference of the circle is called as circular motion. तो यहां पर था a पर टाइम 0 पर, फिर टाइम t पर यहां पर आ गया, फिर टाइम t1 पर इधर आ गया, फिर t2 पर इधर आ गया, फिर t3 पर इधर आ गया. ये नहीं. We are starting with the terms. ये सबसे पहला टर्म था, that was circular motion. इसमें 2 कैटेगरीज है, वो मैं आपको लेक्चर 2 में बताऊंगा. अभी फिलहाल we are studying about the basic terms. Second term which I want to discuss is radius vector, r bar. What is the radius vector बेटा? मैथमेटिक्स वालों ने रेडियस कैसे बताया आपको? रेडियस क्या होता है? What is radius? The line joining from the center to the circumference. यही कहा ना? फिजिक्स वालों ने कहा रेडियस जो है वो स्केलर नहीं होता है, वो वेक्टर होता है. वेक्टर चीज है, क्या होती है बेटा? वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ये चीज के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. आई विल गिव यू द डेफिनेशन, देन वी विल डिस्कस. रेडियस वेक्टर इज डिफाइंड एज द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल to position of particle at that instant. Position of particle at that instant. ध्यान देना इधर. At time 0 पर वो इधर था, तो मैं सेंटर से एक लाइन बनाऊंगा, ओके, which is the line joining from the center of the circle to the position of the particle at that instant pointing over here. इसको हम कहेंगे radius vector. It is called as r bar. मतलब इस समय पार्टिकल इधर है, इसको वेक्टर्स की लैंग्वेज में कहेंगे ये जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है which gives the position of the particle at that instant. इसका काम क्या है? ये क्या काम करता है बेटा? ये काम करता है, किसका काम करता है? Come on, पोजीशन वेक्टर. मतलब ये बताता है कि पार्टिकल अब कहां है. अब इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है. इधर रेफरेंस क्या लिया गया हमने? कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग? सेंटर से. So can I say this is my datum or my reference? And from the reference we are measuring the radius vector from the center, okay, to the circumference. हमने बताया आपको ये रेडियस वेक्टर है. वेक्टर का मतलब होता है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? r. हर जगह पर r ही रहेगा ना बेटा. सपोज ये 1 मीटर है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो रेडियस मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम. क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो वो सर्कल ही नहीं होगा, फिर वो कोई कर्वीलिनियर मोशन होगा. सर्कल होने के लिए रेडियस का मैग्नीट्यूड होना कांस्टेंट होना चाहिए. एंड डायरेक्शन
is along the radius away from the center. What is the direction of radius vector? Along the radius away from the center. Away from the center. अच्छा time t पर वो इधर आ गया. So where will be the radius vector? Can I say the radius vector will be this way, beta? The line joining from the center of the circle to the position of the particle at that instant. Can I say this is r bar again? Can anyone tell me, is this r bar and this r bar equal? When are two vectors said to be equal? When they have the same magnitude and the same direction. क्या दोनों का magnitude same है? हाँ same है. क्या दोनों का direction same है? नहीं same नहीं है. तो इसको हम लिखेंगे r1 bar और इसको हम लिखेंगे r2 bar. और can I say r1 bar is not equal to r2 bar? But I can write that r1 bar का magnitude and r2 bar का magnitude is what? The same, which is common name r. What is the radius vector defined as? The line joining from the center of the circle to the position of the particle at that instant. It is a position vector, means it gives the position of the particle at that instant. इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, बता रहे हो. हर मोमेंट पर रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा है. ओके, चाहे वो छोटा टाइम हो या बड़ा टाइम हो. मतलब 0.1 सेकंड में इधर से इधर आ गया. सो रेडियस वेक्टर विल चेंज. 1 आवर में इधर से इधर आया तो भी पोजीशन वेक्टर चेंज होगा. सो इट इज गिविंग यू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. आर यू ऑल गेटिंग इट? रेडियस वेक्टर एंड डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन क्या है बेटा? अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर. ये उसका डायरेक्शन है. Everyone is okay with this thing? This is a radius vector. तीसरा definition हम पढ़ते हैं. ये clear हो गया? Third definition which I am studying is termed as angular displacement. हमारे linear motion में क्या था बेटा? Displacement. इधर हो गया angular displacement. Angular displacement is denoted by the letter theta bar. Theta bar means it is a vector quantity. I'll write the definition, we'll discuss in detail. सुना? Angular displacement is defined as the angle traced by the radius vector at center of the circle. सुनो 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 बात अगर प्लीज. इधर था टाइम 0 पर, टाइम t पर इधर आ गया. Can I say the radius vector is tracing an angle at the center because center reference है हमारा. So the radius vector is tracing some angle over here. Can I say how much is the angle over here? Let the angle over here be how much beta? Theta. This theta is termed as angular displacement. The angle traced by the radius vector where at the इधर at the center of the circle. एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री? 360. आधा चक्कर लगाएगा, क्वार्टर चक्कर लगाएगा 90. हमको पता है मगर ये डिग्री में नहीं होता है बेटा. फिजिक्स वाले कहते हैं ये जो होता है वो रेडियंस में होता है. So angle traced by the radius vector at the center of the circle is termed as angular displacement. But इतना आसान नहीं है. Okay. It is expressed in radians. It is measured in radians. In one revolution, it is equal to how many radians, beta? 2 pi radians, which is 360 degree, no? पढ़ा है ना 11th standard में? पता है सबको पता. So angular displacement. अच्छा कोई बता सकता है ये फॉर्मूला क्या रहेगा? इधर आ जाओ बेटा, प्लीज. ये फॉर्मूला क्या रहेगा? ये थीटा है, ये r है. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? r है ना? इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? r है. Can I say arc का length is s? रिलेशन पता है हमको. s
थीटा और आर के बीच में. सो कैन आई से व्हाट इज द फॉर्मूला? कैन आई से एंगल ट्रेस्ड, कम ऑन, इज व्हाट? आर अपॉन रेडियस. पता है कि नहीं? व्हाट इज एंगल ट्रेस्ड? थीटा. एस आर. सो एस विल बिकम आर थीटा. ये फॉर्मूला मालूम है? मालूम है, सबको पता है. अच्छा, कोई बता सकता है ये स्केलर फॉर्म है क्या वेक्टर फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? दिस इज स्केलर फॉर्म. मैं यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है. मगर सर यू हैव रिटन दिस इज वेक्टर. थीटा तो थीटा नहीं लिखा मैंने. क्या लिखा बेटा? थीटा. हाँ, देखिए बराबर से, ये तो स्केलर फॉर्म है. स्केलर और वेक्टर आप डिफाइन कैसे करते हो सर? ये तो स्केलर है. करेंगे तो वक्त आता है. हमने क्या बनाया? हमने क्या बोला? ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर. ना आई विल गिव यू अ कंडीशन व्हिच आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ कि वेक्टर कब होगा, स्केलर कब होगा. लिसन, आई एम राइटिंग द कंडीशन हियर. कैन आई से इफ इट इज फाइनाइट टाइम, फाइनाइट टाइम it is a scalar quantity. मतलब यहां से यहां पे जाने के लिए अगर ज्यादा टाइम लगा उसको, तो ये जो थीटा रहेगा वो स्केलर रहेगा, उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा. एंड इफ इट इज इनफाइनाइट सिमिल टाइम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इनफाइनाइट सिमिल मतलब वेरी छोटू, वेरी स्मॉल टाइम. मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए अगर टाइम बहुत छोटू सा है, टेंडिंग टू जीरो, तो ये वेक्टर है. तो ये क्या बात हो गई? बड़ा टाइम होगा तो इट इज स्केलर, छोटा टाइम होगा तो इट इज वेक्टर. हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? बात समझ नहीं आ रही है. यू वांट टू एक्सपेक्ट यू ओके, यू एक्सेप्ट, बट हमको बात समझ नहीं आएगी तो हम सोचते रहेंगे. हमने आपसे क्या कहा? सब बुक्स में क्या लिखा है कि बड़ा टाइम रहेगा तो ये स्केलर है, छोटा टाइम रहेगा तो ये वेक्टर. मतलब बड़ा डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो ये स्केलर है, छोटा डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो ये, अरे बेटा छोटा टाइम रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा ना, बड़ा टाइम रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा. ओके, you fit this in your mind, then I'll give you a demonstration by which I'll explain it to you that finite time, बड़ो टाइम होगा तो ये स्केलर है, छोटो टाइम होगा तो ये वेक्टर है. बड़ो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये स्केलर है, छोटो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वेक्टर है. एक ही चीज के दो सिनेरियोस, कभी स्केलर कभी. अब तक हमने ऐसा चीज देखा नहीं है. भाई करंट कौन सा क्वांटिटी है बताओ मुझे? स्केलर. ऐसे कभी स्केलर है कभी वेक्टर, ऐसा नहीं होता. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? ये तो कभी स्केलर है कभी वेक्टर है. नाउ जस्ट पे अटेंशन, पास में बुक. यस, अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा ये बड़ो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये स्केलर है, छोटो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वेक्टर. हाउ? लिसन अप. दिस बुक कैन रोटेट अबाउट हाउ मेनी एक्सिस? 3. वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड जेड एक्सिस. बेटा देखो ना यार, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस. अरे बोलो, वाई एक्स जेड. मैं इसको घुमाऊंगा दो एक्सिस पर 90 डिग्री, बड़ो डिस्प्लेसमेंट. ये फिजिक्स आपको दिख रहा है ना सामने, फिजिक्स. सुनो, मैं घुमाऊंगा इसको. ए बार कौन सी एक्सिस पर घुमाया? वर्टिकल एक्सिस. ए बार, फिर अभी ये एक्सिस पर घुमाऊंगा, इसको नाम दूंगा बी बार. तो दिस इज ए बार प्लस बी बार. कितना डिग्री घुमाया मैंने? इसका 90 और इसका 90, तो कितना हो गया? वट एवर इट इज. कैन आई से दिस इज ए बार प्लस बी बार? वेयर इज द फिजिक्स पॉइंटिंग? डाउन. मतलब रिजल्टेंट कहाँ आया मेरा? नीचे. ये है ना, फिजिक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है बेटा? नीचे.
देखो फिर से ए बार बी बार, कहाँ पर आया फिजिक्स पॉइंटिंग नीचे। अभी मैं कर रहा हूँ बी बार प्लस ए बार, याद आ रहा है? ओके, ये पहले क्या किया, ए बार प्लस बी बार। अभी मैं करूंगा बी बार प्लस ए बार। बी बार मतलब ऐसे घुमाऊंगा, फिर ऐसे घुमाऊंगा ए बार। देखो ना, बी बार ए बार। फिजिक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, इधर। पहले क्या किया मैंने, ए प्लस बी, फिजिक्स कहाँ पॉइंट करा, नीचे। अभी मैं क्या करूंगा, बी प्लस ए, फिजिक्स कहाँ पॉइंट करा, इस तरफ। इज ए बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। इस लॉ को क्या कहते थे फिजिक्स में, कम्यूटेटिव लॉ। इज बड़ो डिस्प्लेसमेंट ओबेइंग कम्यूटेटिव लॉ? नो। So it is thrown out of the category of vectors and put in which category, beta? Scalar. You're not obeying laws. बराबर? If you don't obey laws, get out of my category. Current भी ऐसा ही था, current laws obey नहीं कर रहा था। क्या था, दो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो ऐड होके जाता है, I1 plus I2 I3। मगर वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल सब्ट्रैक्ट, तो ये तो ऐड हो रहा है, तो करंट को भी फेंक दिया हमने वो कैटेगरी, गेट आउट फ्रॉम योर कैटेगरी, स्केलर बन जाओ। वैसे इसको भी ए बार प्लस बी बार और बी बार प्लस ए बार, रिजल्टेंट सेम नहीं आया सेम जगह पर, तो इसको हमने क्या पकड़ लिया बेटा, स्केलर। अभी हम छोटों की बात करते हैं, छोटो डिस्प्लेसमेंट। सुनना बात, फिजिक्स अभी छोटा डिस्प्लेसमेंट। पहले मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, बड़ा 90 डिग्री वाला। अभी सुनो, छोटा डिस्प्लेसमेंट, ए बार छोटा, ए बार बी बार, ए बार बी बार। किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। देखो फिर से, ए बी, इसकी तरफ। अभी देखो दूसरा, अभी क्या करूंगा मैं, बी प्लस ए, बी बी ए। यू अगेन लुक, ए बी बी ए, क्या हुआ, is a plus b equal to b plus a? Is it obeying commutative law? Yes sir. So infinite simul in a displacement or infinite simul time में it is which quantity beta, a vector quantity, because it is obeying the laws of vectors. तो हम वही कह सकते हैं कि अगर ये टाइम बड़ा रहेगा, बड़ा टाइम रहेगा तो ये स्केलर बनेगा, और अगर ये टाइम छोटा रहेगा तो ये क्या बनेगा, अरे राइट नाउ आई एक्सप्लेन, अगर ये टाइम बड़ा रहेगा तो फाइनाइट रहेगा तो ये क्या बनेगा, स्केलर। तो जनरल फॉर्मूला अप्लाई हुआ, s इज इक्वल टू आर थीटा। मगर अगर ये टाइम छोटा सा टाइम रहेगा, इनफाइनाइट सिमिल टाइम रहेगा, तो ये जो थीटा रहेगा वो हो जाएगा थीटा बार। एंड द फॉर्मूला व्हिच इज s is r theta will be converted into delta s bar will be delta theta bar cross r bar। ये इसका कौन सा फॉर्म है बेटा, ये उसका वेक्टर फॉर्म। गिरेंगे बहुत सारा, ये आपको याद करना है। डेल्टा एस बार इज डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार। डोंट राइट आर बार क्रॉस डेल्टा थीटा बार, बिकॉज ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए। तो जैसे फॉर्म है वैसे याद रखना है, डेल्टा थीटा बार इज डेल्टा आर, डेल्टा एस बार इज डेल्टा थीटा बार क्रॉस। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? Okay. The formula which came was delta s bar is delta theta bar cross r bar। ये कौन सा क्वांटिटी है बेटा, एक वेक्टर है। वेक्टर के पास कितनी चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला। मतलब आप अगर इससे बार निकाल देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एस इज आर डेल्टा थीटा, वो उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है। वेक्टर है, वेक्टर है मतलब इसके बाद दो चीजें, मैग्नीट्यूड एंड direction। direction over here, direction of this theta is there। अगर finite है तो ये स्केलर है, बड़ो है तो ये स्केलर है, छोटो टाइम है तो ये वेक्टर है, वेक्टर के पास डायरेक्शन होगा। The direction of angular displacement is given by right hand thumb rule। इधर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। What is right hand thumb rule? This is the
y axis, x axis and z axis. सुनो इधर, and this is a circle. Circle is located in the xz plane. भाई इमेजिन एक टेबल रखा है, टेबल के ऊपर सर्कल है, ऐसे पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, ऐसे जा रहा है. वर्टिकल सर्कल, यहाँ पर हमने वर्टिकल सर्कल बनाया ना ऐसे. समझ में आ रही है बात? ये एक्जेक्ट प्लेन में. सपोज पार्टिकल टाइम 0 पर इधर था, ए पर था, ए पर, तो रेडियस वेक्टर ऐसे रहेगा यहाँ से यहाँ तक ना, ये सेंटर है ना बेटा, तो ये रेडियस वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? आर बार, आर आर लेंगे हम लोग, ए पर आ गया. और हमको वेक्टर जो प्रूफ करना है वो छोटो टाइम के लिए है ना, तो मतलब यहां से वो यहां तक ट्रैवल करके गया इन छोटो टाइम. लेट द टाइम बी डेल्टा टी, डेल्टा मतलब स्मॉल, छोटो टाइम डेल्टा टी. तो अभी पोजीशन वेक्टर कौन सा बना? पोजीशन वेक्टर ये बना बेटा. कैन आई नेम दिस एज बी? Can I say this is the angle theta or this is the angle delta theta? But this delta theta by this formula is a vector, and which is given by, the direction is given by of delta theta bar will be given by right hand thumb rule. What is right hand thumb rule? Imagine the axis of rotation held in the right hand. सुनना बात है. Axis of rotation कहाँ है? ये axis of rotation. Because the plane of the circle is xz ना, तो axis of rotation ये रहेगा. क्या कहता है right hand thumb rule? Imagine the axis of rotation is held in the right hand with the fingers curled and the thumb outstretched. If the fingers curled denote the sense of rotation. Fingers curled क्या बताएंगे आपके? Sense of rotation. Rotation कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा? A से B तक. Sense of rotation is anti-clockwise. देखो anti-clockwise. तो sense of rotation is also anti-clockwise. The outstretched thumb gives the direction of angular displacement. मतलब angular displacement किस direction में? इस thumb के direction. So this is the direction of delta theta bar. फिर से सुनो. Imagine the axis of rotation held in the right hand with the fingers curled and the thumb outstretched. If the fingers curled denote the rotation A to B, then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement. So where is delta theta bar? ऊपर. अच्छा कोई बता सकता है अगर पार्टिकल B से A तक जाता तो? ऐसे होता ना बेटा. तो where is the direction of delta theta bar? Down. मतलब अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो डायरेक्शन ऊपर आएगा. एंटी क्लॉकवाइज, what is the direction going to come? Upwards. Clockwise, where is the direction going to come? Downwards. बात समझ में आई? नहीं समझ में आई अब तक? सुनो मेरी बात, मैं तुम लोग का डाउट क्लियर करता हूँ. ओके, तो आजकल ऐसे होता है, क्वेश्चन ऑल्सो आई आस्क एंड आंसर ऑल्सो आई गिव. ओके, पे अटेंशन. तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा कि सर एंगल का डायरेक्शन ऊपर कैसे हो सकता है? 30 डिग्री बनाया उसने यहाँ से यहाँ तक, 30 डिग्री ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है आंसर. नहीं, दिमाग में नहीं आया था क्वेश्चन. है अभी आया दिमाग में? मैं बोलूं B से A तक गया 10 डिग्री, मैं बोलूं 10 डिग्री नीचे, नीचे कैसे हो सकता है सर? या तो 10 डिग्री क्लॉकवाइज होगा या तो 10 डिग्री एंटी होगा. क्लॉक या तो एंटी ना, ऊपर या नीचे, कहां से आ गया? ये तो अजीब है. राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है? इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, होल्ड द राइट हैंड, फिंगर्स कर्ल्ड, थंब आउटस्ट्रेच्ड. द फिंगर्स कर्ल्ड denote the sense of rotation. Outstretched thumb gives the direction of angular displacement. Anti clockwise upward, clockwise downward. ऐसे रटा मारना है हमको, बराबर है? मगर उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. Suppose I am standing in the signal. It's a scooter. Okay, the signal turns red. Means what? Stop. Did they tell you to stop? Is written over it. I don't want to stop. नहीं भाई, रेड का मतलब होता है स्टॉप. अच्छा, इट टर्न्स ग्रीन मतलब डिड दे टेल यू टू गो? इज रिटन गो. भाई वो एक सिग्नल है कि रेड का मतलब रुक जाओ, ग्रीन का मतलब जाओ.
वैसे यहाँ पर भी ये जो है वो डायरेक्शन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ऊपर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और नीचे का मतलब होता है क्लॉकवाइज। गेटिंग इट? ये कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी बुक्स में लिखा है डायरेक्शन। जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में जिन लोगों ने पढ़ा है, एक क्वांटिटी थी टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हमने साइन पॉजिटिव पकड़ लिया और क्लॉकवाइज को हमने क्या पकड़ लिया? क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं? ऐसे कुछ नहीं होता, साइन हमेशा पॉजिटिव पकड़ा, क्यों? हमको समझना था। वैसे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऊपर एंड क्लॉकवाइज का मतलब होता है नीचे। ये कौन सा सर्कल है? हॉरिजॉन्टल सर्कल है कि वर्टिकल सर्कल है? अच्छा, हम लोग इधर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बात सुनो। ये वर्टिकल सर्कल है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, होल्ड द राइट हैंड। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से आ रहा है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सर्कल है ना, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां रहेगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। सो इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, होल्ड द राइट हैंड with the fingers curled and the thumb outstretched. The fingers curled denote the rotation. Rotation ऐसे ही है ना? Then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement. So angular displacement will be outward. तो यहाँ पर outward का मतलब होता है anti clockwise और inward का मतलब होता है clockwise. Outward का मतलब होगा dot and inward का मतलब होगा cross. मगर मेरे को ज़्यादा confuse नहीं करना था, इसलिए मैंने horizontal circle बना के दिया। तो आउटवर्ड का मतलब भी होता है एंटी क्लॉकवाइज एंड इनवर्ड का मतलब भी होता है क्लॉकवाइज। ये कांसेप्ट्स याद रखना बिकॉज़ इट इज बेस्ड ऑन द टोटल व्हाटएवर। ओके, आफ्टर दिस विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली। एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड। भाई सही ये चीज। तो इसका स्केलर फॉर्म भी मिल गया, वेक्टर फॉर्म भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। And the direction is given by which rule बेटा? Right hand। ओके सर, बात सही। ये मिला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हम इसके बाद वाली क्वांटिटी पढ़ेंगे। ओके, बात सुनना अभी तक प्लीज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ, रेडियस वेक्टर क्लियर हुआ। हम पढ़ते हैं, पे अटेंशन, angular velocity is denoted by the letter omega bar। अच्छा, रूल वही अप्लाई होगा, बड़ो डिस्प्लेसमेंट बड़ो टाइम स्केलर, छोटो डिस्प्लेसमेंट छोटो टाइम वेक्टर। रूल पूरा वो फिजिक्स में अप्लाई होगा हमेशा के लिए। वेक्टर छोटा रहे क्योंकि लॉ ओबे कर रहा है, अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। बड़ा रहेगा तो लॉ ओबे, वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ओबे नहीं करेगा, तो वो स्केलर की कैटेगरी में आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा व्हाट इज जनरल वेलोसिटी डिफाइंड एज? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन मैं लिखता हूं, हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्ड क्या आ गया? कौन सा वर्ड लगा दिया हमने? एंगुलर। यस और नो? बात सुनो इधर प्लीज, बात सुनो। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं हम लोग, थोड़ा वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो उसका वेलोसिटी भी कहां रहेगा? इधर ही रहेगा यार। मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है। ओके, यू कैन नॉट से दैट डिस्प्लेसमेंट इधर है वेलोसिटी उधर है, ऐसे नो। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। कौन से मोशन में? लीनियर में। अभी हम लीनियर की बात करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग एंगुलर मोशन। अच्छा, वेलोसिटी दो तरीके की होती है। एक होता है, बोलो जल्दी किसको आता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और दूसरा वाला कौन सा वेलोसिटी होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हिच इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस हमेशा छोटू होता है, इंस्टेंटेनियस हमेशा स्मॉल, एट दैट इंस्टेंट इज वेरी स्मॉल। मतलब आप बाइक पर जा रहे हो और आपको दोस्त दिख गया तो आप हाई करेंगे ना उसको ऐसे, एंड यू पास ऑन आल्सो। At that time is very very small or very very big? Man, very small. At that time I saw my friend and I waved to my friend. That time interval was very छोटू सा, बराबर है? वो इंस्टेंटेनियस हुआ। और एवरेज में आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया अपॉन टोटल टाइम कैलकुलेट किया, ये तो बड़ा हुआ। तो ये कौन सी कैटेगरी में फिट हो जाएगा? स्केलर। और ये कौन सी कैटेगरी में फिट हो जाएगा? वेक्टर। अभी हमारे उसके अंदर ये स्केलर कैटेगरी और ये वेक्टर कैटेगरी में फिट होगा। ये क्लियर हो गया लीनियर मोशन के बारे में? यस सर। नाउ आई विल कन्वर्ट दिस, ये दिमाग में फिट कर लो। आई विल कन्वर्ट दिस मोशन इनटू एंगुलर मोशन। दो टाइप के ओमेगा रहेंगे, जल्दी बताओ। दो टाइप के ओमेगा रहेंगे, एक रहेगा ओमेगा एवरेज, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इधर के डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी विल दिस टाइम भी बड़ो और छोटो? बिग। अगर ये छोटो हुआ तो इसे वेक्टर बन जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या रहेगा? थीटा का यूनिट क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। इट्स इजी चीज है, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। मीटर का बदल गया किसमें? रेडियन पर सेकंड। दैट इज ऑल अंडरस्टूड। ओमेगा एवरेज या ओमेगा आई एम राइटिंग इज थीटा बाय टी, व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको ओमेगा एवरेज भी कहेंगे बिकॉज़ टाइम इंटरवल इज बड़ो। कोई बता सकते हैं एक चक्कर में ओमेगा कितना रहेगा? 2 पाई बाय टी। खाली 2 पाई नहीं, खाली 2 पाई बस थीटा। तो आई विल राइट इन वन रेवोल्यूशन ओमेगा इज 2 पाई बाय बड़ो टी। ओके, व्हाट इज बड़ो टी? टाइम पीरियड। चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेटर तक तो मैं आया ही नहीं हूं, इधर ध्यान दो। What is the difference between छोटो टी and बड़ो टी? पता ही नहीं। What is the difference between small t and big T? Big T is time period. चलो मैं बता देता हूँ। Time taken for one revolution. छोटो टी? ठीक है, नॉट वेस्ट टाइम। इधर छोटो टी एंड बड़ो टी, इधर ध्यान देना, नहीं आता है। only one person answered in the whole पूरा मॉर्निंग से इवनिंग। आपको ये बेसिक चीजें नहीं है। स्मॉल टी इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस टाइम, टाइम एट दैट इंस्टेंट। मतलब क्या? सुनो इसकी बात, नाम तो ठीक है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? सुनो, मैं इधर आई एम स्टैंडिंग हियर, यहां से वहां तक जाने के लिए सपोज 3 सेकेंड लगेगा। 1 2 3, दिस इज बड़ो टी, टाइम पीरियड पूरा। छोटो टी क्या रहेगा? छोटो टी कैन बी 1 सेकेंड ऑल्सो, 2 सेकेंड ऑल्सो, 3 सेकेंड ऑल्सो व्हेन यू ऑब्जर्व, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ दिस लेक्चर? 1.5 आवर। उसमें से तुम लोग लेट आए, बात अलग है। ओके, टोटल बड़ो टी इज 1.5 आवर। ओके, अभी 1 आवर गुजर चुका है, तो राइट नाउ छोटो टी इज 1 आवर। अभी हो गया 1 आवर 2 सेकेंड्स, अभी हो गया 1 आवर 4 सेकेंड्स। समझ में आ रही है बात? जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो छोटो टी विल बी इक्वल टू बड़ो टी। तो छोटो टी इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू बड़ो टी, बट बड़ो टी इज कांस्टेंट। बोलो,
इस सब कंसेप्ट्स की वजह से आपको फिर समझ ही नहीं आते क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में। थियरी में तो हम लिख लेंगे, थियरी में कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझ गया ना। उसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, पे अटेंशन ओवर हियर। इसका वेक्टर फॉर्म जो बनेगा वो इंस्टेंटेनियस बनेगा, बिकॉज इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल छोटू सा होता है। इसको लिखेंगे ओमेगा इंस्टेंटेनियस बार, पे अटेंशन, डेल्टा थीटा बार बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 which is d theta bar by dt। ये उसका वेक्टर फॉर्म। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैथमेटिक्स का लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी का लैंग्वेज है। ओमेगा बार, ओमेगा से क्या बन गया ओमेगा बार, which is डेल्टा थीटा बार बाय डेल्टा, डेल्टा मतलब छोटू सा, और छोटू सा में वेक्टर लिखना है डेल्टा टी। मैथ्स वालों ने क्या बताया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब इस कंडीशन में डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0 मींस व्हाट, टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी इनफाइनाइट सिमिल, वही तो लैंग्वेज यूज कर रहा है। This whole function can also be written as d theta bar by dt, means it is the first derivative of theta with respect to time। बेटा अगर थीटा t स्क्वायर होगा तो ओमेगा क्या बनेगा 2t। अरे भाई अगर थीटा t क्यूब होगा 3t, पता तो लग गया आपको, क्या बड़ी बात है। बट दिस इज विच फॉर्म, दिस इज विच फॉर्म, स्केलर। ये कौन सा फॉर्म था जल्दी बताओ, ये कौन सा फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। इसका वेक्टर फॉर्म मतलब दो चीजें होगी, मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा। इसके पास मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा। कैन आई से इट इज अ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड दूसरा वाला क्या, डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इधर हम लोग फिर से आते हैं, इधर सुन। Imagine axis of rotation, hold in the right hand, fingers curled and the thumb are straight. If the fingers curled denote the sense of rotation, then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement as well as angular velocity. तो angular velocity भी यही direction में रहेगा, anti-clockwise upward, clockwise downward। सर ये तो बात समझ नहीं है, थीटा की तो बात समझ में आएगी, ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऊपर, क्लॉकवाइज जा रहा है तो नीचे। ये थोड़ा यार फीलिंग नहीं आ रहा है, बराबर है, यू शुड गेट द फीलिंग एट लीस्ट, वी आर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज ऊपर ऊपर से तो सब लोग याद कर लेते हैं। मैं आपको ये डायग्राम दे दो, आपको सब समझ जाएगा। लीनियर मोशन की बात करता है, एक पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी किधर है, इधर है। इसको इससे कंपेयर करो ना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर, तो वेलोसिटी भी कहाँ रहेगा। ये देखो ना, ये तो अंडरस्टूड बात है कि भाई डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है, ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए ना। ओके, मतलब कोई भी अजीब आदमी रहेगा जो कहेगा जा रहा है इधर है, वेलोसिटी उधर है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हम क्या कहेंगे कि थीटा ऊपर है, ओमेगा भी ऊपर है, अगर थीटा नीचे है तो ओमेगा भी नीचे है। कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक ओनली, बराबर है। So this is about angular velocity, which is defined as rate of change of angular displacement with respect to time. Omega is theta by t in one revolution is 2 pi by t. क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओमेगा is 2 pi n, what is 1 by t? फ्रीक्वेंसी। तो 1 by t is फ्रीक्वेंसी ना, तो ओमेगा के दो फॉर्मूलेज बनेंगे, 2 pi by t and 2 pi n, जो हम लेक्चर नंबर 2 में यूज करेंगे। This is for one revolution ना, one revolution. Omega instantaneous is delta theta bar by delta t, d theta bar by dt is vector, magnitude and direction is right hand thumb rule, and right hand thumb rule तो पता है हमको, anti clockwise up and clockwise down। कितने डेफिनेशंस पढ़े अब तक हमने, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट डेफिनेशन व्हिच वी आर स्टडीइंग इज, listen over here, है ना? Okay, one of the complicated definitions of circular motion. ये clear है? Angular acceleration. इसका word is alpha bar.
एस का जगह किसने ले लिया? थीटा ने। वी का जगह किसने ले लिया? ओमेगा ने। ए का जगह किसने ले लिया? अल्फा ने। और उसके सबके आगे वर्ड लग गया एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एस बार थीटा बार, तो ये कंडीशन ओबे करना चाहिए, छोटों के लिए होगा। वी बार ओमेगा बार, ए बार अल्फा बार। इसका डेफिनेशन क्या? व्हाट इज ए का डेफिनेशन? एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन मैं लिखूंगा रेट ऑफ, बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। With respect to time always it is there। मगर रुक जाओ, मैं यहां पर इसको फिर से कंपेयर करते हैं लीनियर मोशन से। कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं बेटा? दो। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। बात सुनो। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या था ये फॉर्मूला? v minus u by t, where v is the final velocity, u is the initial velocity upon time t। या तो मैं इसको लिखता हूँ v final और लिखूंगा v initial, ठीक है ना? तो क्या प्रॉब्लम है? सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा एवरेज एक्सेलरेशन। और दूसरा वाला रहेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, व्हिच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस हमेशा छोटो टाइम पर होता है ना, पता है ना भाई वाला। टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, इसमें बड़ा टाइम होगा। अच्छा, इसको कन्वर्ट करेंगे अभी, इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसमें डायग्राम याद रखना। अभी बात सुनो, फिर से मैं दे रहा हूं। मैं आपको 3 सिनेरियोस देता हूं, आप मुझे डायरेक्शंस बताना। लीनियर की बात करते हैं। ये पार्टिकल जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। बेटा हाउ मच इज द एक्सेलरेशन? ये पता है, कांस्टेंट से जाएगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेट कहां कर रहा है? पार्टिकल इधर जा रहा है वेलोसिटी से एंड एक्सेलरेशन भी यहां पर है। क्या होने वाला है? velocity will increase with respect to time, मतलब v final will be बड़ो than v initial। बोलो। तो मैं यहां से एक रिजल्ट ड्रॉ कर सकता हूं कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर देयर इन द सेम डायरेक्शन। बोलो, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तुम्हें पता है अगर v और a एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ता है। कोई बता सकता है इधर क्या होगा? इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन तो बाद में नाम है। इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इधर द फाइनल वेलोसिटी विल बी लेसर देन इनिशियल वेलोसिटी। ये सब हम लोग रिजल्ट ड्रॉ करने के लिए बता रहे हैं कि अगर मैं कहूँ स्पीड कम हो रहा है तो आप बोलेंगे ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में होना बनता है। अगर मैं कहूँ स्पीड बढ़ रहा है तो ए एंड बी आर देयर इन द सेम डायरेक्शन। मैं कहूँ स्पीड कांस्टेंट है तो भाई आप बोलेंगे ए है ही नहीं। ये तो आना चाहिए। द बेसिक्स ऑफ योर काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं विच मोशन में? एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, कर्वीलिनियर मोशन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है? I'll write over here, ए का जगह ले लिया बेटा अल्फा ने। अल्फा एवरेज, what is that? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टी। अरे सेम फॉर्मूला। अल्फा एवरेज, कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या रहेगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, मीटर की जगह तो रेडियन हो गया। ये देखो ना, इसका रेडियन पर सेकंड है और अपॉन सेकंड विल बिकम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा टाइम पास थिंग्स ये आना चाहिए। मगर ये स्केलर है। क्यों स्केलर है? बड़ा टाइम ना। ओमेगा 1 से ओमेगा 2 होने के लिए बड़ा टाइम है। अगर छोटा टाइम होगा तो बार बार सब लिख लेना, आपको कोई टेंशन नहीं है। मगर आई एम कंसीडरिंग दैट दिस टाइम इज बिग। Now I will do instantaneous acceleration. Instantaneous angular acceleration alpha bar will be delta omega bar by delta t, where limit delta t tends to 0, which can also be written as a d omega bar by dt. वही फॉर्मेट में लिखा ना, उधर देखो ना भाई, ये देखो
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मैक्स वाले क्या बता रहे हैं आपको कि टाइम इंटरवल बहुत छोटू सा है, जब टाइम इंटरवल इनफाइनाइट से होगा तो ही तो वेक्टर बनेगा। एंड ये फॉर्म क्या बन जाएगा लिमिट से, d omega bar by dt, that is it is the first derivative of omega with respect to time। मतलब अगर ओमेगा आपके पास t raised to 5 है तो अल्फा क्या रहेगा 5t4। अगर ओमेगा आपके पास है 3t 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इंस्टेंटेनियस चीज है, हर मोमेंट पर चेंज होने वाली चीज है। और यही, ये तो कौन सा फॉर्म दिया मैंने आपको, स्केलर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बनेगा बेटा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर के बाद दो चीजें होगी, जल्दी बता दो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, मगर रूल चेंज हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा एक्सेप्शन है। सुन लो, समझ गया ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, बट द रूल इज नाउ चेंजिंग। I'll rub this and we'll see some diagrams. Why is the rule changing? What happened? सुनो बात है, मैं कहूँ ये सर्कल है, पार्टिकल इधर था एट टाइम 0, इधर ध्यान देना प्लीज। ए पर, यहां पर आ गया वो टाइम डेल्टा टी पर, उसने इतना एंगल ट्रेस किया डेल्टा थीटा, यहां से यहां तक ऐसे जा रहा था, ए से बी। इधर उसका स्पीड था ओमेगा 1, इधर उसका स्पीड हो गया बेटा ओमेगा 2, बराबर है। कैन एनीवन टेल मी, नाउ फिर से रिवाइज करते हैं, कैन एनीवन टेल मी वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा? Where is the direction of delta theta? जल्दी बता दो। Upwards. Direction of delta theta bar is upward. Where is the direction of delta omega bar? Because this direction में delta theta होगा displacement, उसी direction में delta omega भी होगा, तो एकदम clear बात है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हमको सबको दिखता है। Where is the direction of alpha bar? तुम्हारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए मालूम है? सर ओमेगा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक मिनट, यू कैन नॉट आंसर माई क्वेश्चन वॉज वेग। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए सर ओमेगा 2 बड़ा है या ओमेगा 2 छोटा है? अगर ओमेगा 2 इज बिगर देन ओमेगा 1, देन ओमेगा एंड अल्फा आर देयर इन द सेम डायरेक्शन। अभी डायग्राम ड्रॉ किया था। Okay, if V and A are there in the same direction, V will increase. और मैं अगर कहूँ कि if omega 2 is less than omega 1, तो आप क्या कहेंगे? Alpha will be there in the downward direction. ये इसके लिए और ये इसके लिए। ये कहाँ से आएगा? ये ऐसे आएगा ना, V and A, can I say V will decrease with respect to time, आगे जाके कम होता रहेगा। समझ में आ रही है बात? ओमेगा का बढ़ना का क्या एग्जाम्पल है, या ओमेगा का कम होना का क्या एग्जाम्पल है? गिव मी सम डेली एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? आई एम स्टैंडिंग एट अ सिग्नल, 0 स्पीड, अचानक ग्रीन हो गया, मैंने एक्सेलरेटर दिया, बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, एंड हम आगे बढ़ गए। इसका एग्जाम्पल क्या है? I see the red signal in front of me, I apply brakes, and after some time the speed is going to become 0. Understand physics by examples, वरना okay हवा में बात होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओमेगा का बढ़ना का क्या एग्जाम्पल है? डिग्री लेवल। When the earth is near the sun. Okay, that is fine, but we'll see some daily examples. Okay, that will come in second chapter बेटा, gravitation। एक मिनट, अभी सब लोगों को पता नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल इज फैन। फैन का जब स्पीड बढ़ाएंगे आप तो ओमेगा बढ़ेगा, तो उस समय अल्फा एंड डेल्टा ओमेगा विल बी देयर इन द सेम डायरेक्शन।
एंड फैन का अगर आप स्पीड कम करेंगे तो एट दैट मोमेंट ओमेगा ऊपर है बट अल्फा नीचे है, प्रोवाइडेड दैट द फैन इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर फैन जो है क्लॉकवाइज जा रहा है और बढ़ रहा है तो बताओ कहां? तीनों डाउनवर्ड्स। अरे थीटा ओमेगा अल्फा। अच्छा फैन क्लॉकवाइज जा रहा है बट स्पीड कम हो रहा है, व्हाट इज द पॉइंट? अल्फा इज ओनली अपवर्ड, बाकी दोनों कंपोनेंट्स नीचे। अच्छा मैं कहूँ कांस्टेंट ओमेगा से जा रहा है, ओमेगा 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 ओमेगा, बोलो देयर इज नो अल्फा, देयर इज ओनली थीटा एंड देयर इज डेल्टा, देयर इज ओमेगा। मतलब अगर सिर्फ ओमेगा से जा रहा है, इधर देखो, मतलब यहां पर ओमेगा है, यहां पर भी ओमेगा है, तो थीटा भी ऐसे रहेगा एंड ओमेगा भी ऐसे रहेगा। अल्फा कितना है यहां पर? सुनो बात, अगर ये डेल्टा थीटा है, इस अल्फा जीरो को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे बेटा इसको? इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, NUCM, UCM। नेचर में जितनी चीजें बनाई हैं सब UCM। मोशन ऑफ द अर्थ around the sun, uniform circular motion we consider, because time period is 365 days and we consider them not in elliptical orbit but we consider them in circular orbits in our portion, यानी elliptical orbit, बराबर है? motion of the electron around the nucleus, motion of the moon around the earth, motion of the tip of the minute hand or the hour's hand or the seconds hand of the clock, uniform circular motion. Can anyone tell me what is the time period of second hand of the clock? एक चक्कर कितना टाइम में काटता है वो? 60 seconds, ये सब आना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड 3600, टाइम पीरियड ऑफ आवर्स हैंड 12 hours 43200 seconds, बराबर? एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा? 12 hours ना, 24 घंटे का कोई घड़ी नहीं होता है, understand? 12 hours, so it is 43200. These all are uniform because they are periodic time. ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट 2 लेक्चर तक हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डायनेमिक्स पढ़ेंगे कि इसको, इसका कारण क्या है ऐसे घूमने का। सीधा जाओ, किसने बोला तुमको सब गोल गोल घूमने के लिए? द पार्टिकल कैन गो स्ट्रेट आल्सो ना। So the whole dynamics of circular motion UCM will be studying, and the last 2 lectures will be studying about non-UCM. Non-UCM कहाँ मिलता है? जो में हाँ फैन तो होता ही है, और कभी नोटिस किया है किधर? मिक्सर में। ओके, have you felt non-uniform circular motion ever? Very good. Say, you know, giant wheel. आप जब बैठेंगे ओमेगा चेंज होता रहेगा, पूरा सेल वर्ल्ड जो है ना वो नॉन यूसीएम से भरा हुआ है। अगर नॉन यूसीएम नहीं रहेगा तो आपको मजा ही नहीं आएगा, क्या हो रहा है ऐसे ही को कांस्टेंट से घूम रहा है, आई डोंट वांट टू डू दैट। ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा, ऐसे ऊपर जाते जाते ओमेगा बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। सो दैट इज व्हाट? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। And because of that we get excitement in the stomach, ना? Pseudo forces वाला acting। इधर कुछ नहीं, UCM में मजा नहीं आएगा। Okay, so we are going to study uniform circular motion also and non-uniform circular motion also.